Bombs don't fall from the sky, unable to break the faith we have. Though we look obliviously at heavens, searching for meanings and answers to this chaos, still at least we're standing. Our faith cannot fade away now. Have to keep Iqbal's flame burning, for that is our only rope, or these bombshells will break us all. We didn't grow up to see this blood, nor were willing to see it more. We have to stand, change history, realize our worth, and make our faith. Let the forces shatter all the glass there is, and we'll together sweep it off. We're proud of every scratch and of every blood we drip. They want to burn our homes? We swear to God we will not move an inch. Oh, you cruel people, look me in the eyes. Say you are not one of us. We certainly don't recognize you. We don't kill our sons and daughters blindfolded and laugh at mothers who lose their only support. Say you are not one of us, who bomb us at our very homes. What are you made of? Blue-blooded and ruthless, you will never become one of us. We have the backing of God and the flame of Iqbal. You have hope and you can only fear. The storm is fierce and we are all well prepared. The heavens will witness what they never saw. O Lord, keep our hope in you and shower us with your blessings. We are on our way to save Jinnah's Pakistan. Ladies and gentlemen, this is the Youth of Pakistan, and I am Ali Khan. I welcome you all today to Pakistan's first exclusive discussion on the Youth of Pakistan. हमारी कौम के वो नौजवान जिस पाकिस्तान की ताकत है, इसकी जान है और इस मुल्क की खिदमत में सबसे आगे और पेश पेश है। ये वो दिमाग है जिसके लिए इस मुल्क के उस्तादों ने बहुत मेहनत की। ये वो इखलाक है जिसको इस कौम में डालने के लिए हमारी माओ ने बहुत मेहनत की। सामीन, pakistanfirst.com की ये एक्सक्लूसिव डिस्कशन और आने वाले अगले 3 शोज आपको पाकिस्तान की यूथ नौजवान से मिलवाएंगे। सामीन, आज के शो में आपने जिन साहिबा की आवाज सुनी उनसे मैं आपका तारुफ जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के इस शो करने का मकसद बताता चलूं। पाकिस्तान फर्स्ट के एडिटर्स शो में हमने पॉलिटिशियंस से बात की, हमने फॉर्मर जनरल से बात की, हमने बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स के हेड से बात की। यूथ ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की 160 मिलियन अवाम में से 100 मिलियन गिरा जाता है, ये वो हिस्सा है जो इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ेगा, इस मुल्क को आगे लेकर चलेगा और कायदे आज़म के मुताबिक इस मुल्क को द ग्रेटेस्ट नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनाएगा। क्या हमारी यूथ आज इस वक्त इतनी मायूस हो चुकी है कि वो जिनास के पाकिस्तान को वापस नहीं ला सकती? क्या हमारी ये यूथ, ये नौजवान इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें पाकिस्तान की कोई उम्मीद नजर नहीं आती? क्या ये अल्लामा इकबाल के वो नौजवान हैं जिनकी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी? सामीन, it's an honor for me to present to you the Youth of Pakistan series, and the first show starts today. अस्सलाम वालेकुम ज़रीन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ओके, मैंने आपका इतना एब्रप्ट इंट्रोडक्शन कराने की वजह ये थी क्योंकि आपकी आवाज़ तो हमारे सामीन पहले से सुन चुके हैं, और जो सबसे बेहतरीन बात आपने इस स्टैंड, आपकी जो पोइम थी उसके आखिरी स्टैंजा था। मैं आपसे एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि वो आखिरी स्टैंजा दोबारा पढ़िएगा, जो आखिरी अशार थे आपके अंग्रेजी जो पोइम के थे, उसे एक दफ़ा दोबारा पढ़िएगा ताकि उसके ऊपर फिर उधर से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह विल गो फॉरवर्ड। Okay. Blue-blooded and ruthless, you will never become one of us. You have the backing of God and the flame of Iqbal. You have hope and you can only fear. The storm is fierce and we are all well prepared. The heavens will witness what they never saw. O Lord, keep our hope in you and shower us with your blessings. We are on our way to save Jinnah's Pakistan. Jinnah's Pakistan. Zareen, I'm very excited today. मैं आपसे, आपके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू आज हमने पूरे शो में करनी है, लेकिन मैं आप सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि आखिरी स्टैंजा आपने क्या सोच के लिखा? The last stanza ये सोच के लिखा कि we all have to unite.
हमें एक साथ काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए. अभी इट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो पाकिस्तान हमें आगे लाना होगा जो जिन्ना ने जिसका ख्वाब देखा था, जो इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था. इसलिए हम शायद उस रास्ते से बहुत ज्यादा भटक गए हैं, और उस वजह से एक यूनिटी दिखाने के लिए कि वी आर प्रिपेयर्ड बट वी नीड अ चांस. Well, I think, Zareen, this is the best message people of Pakistan need. Samin, मैं आपको बताता चलूं, Zareen Zubair is to be a journalist. She is a mass comm student. Zareen is a very intelligent lady. इनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपको कहाँ से कराने शुरू करूँ. She at a very young age she published her first book of poetry. And Zareen, उसका नाम बताइएगा please. Beyond Ecstasy. Beyond Ecstasy. It's a very good book. It's a compilation of all poems, and it's a very nice book. But I would ask you to buy it and read it, because इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, वो जो उनके ख्यालात हैं, जो उनकी सोच है, जो बचपन से और फिर जब बंदा बड़ा होता है और वो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट को देखता है, और उसके बाद उसकी अपनी एक सोच होती है, उसकी अपनी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, उसकी अपनी एक इंस्पायरेशंस होती हैं, उसको समझने के लिए पाकिस्तान में ऐसी किताब इट्स जैम. ज़रीन के बारे में आपको ये भी बताता चलूं कि शी वॉन FLP's वॉइस फर्स्ट एवर नेशनल कंपटीशन दिस ईयर. The topic was bombs in my backyard yet hope in my heart, or that was in collaboration with the Green Kaleidoscope, and that's where I actually read her poem, and when I saw that this is beautiful thing, I thought it gave me a strike idea कि यार पाकिस्तान की यूथ के ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की यूथ के बारे में बात होनी चाहिए. और मैं आपको ये भी आज बताता चलूं कि पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तान की यूथ के लिए, जो इंटरनेट savvy है, जो इंटरनेट को कुछ किसी हद तक जानती भी होगी, और जो कि कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, हम आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं. और सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान की यूथ के लिए हम इस दफा लेकर आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान live online internet station which is going to be broadcasted 24 hours a day. उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन हमारी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी, और you will get more details on that, but I thought I should give this details out to you. Let's go to Zareen and the youth of Pakistan now. Zareen, ये बताइएगा, why did you start writing and how did you start writing? Well, I was very young when I started writing, and एक sensitiveness थी, एक emotions जाहिर करने का एक अंदाज होता है writing में. So I always wanted to do that. For some reason it always attracted me. और बस लिखते लिखते जितना आप ज़्यादा लिखते हो आपको और लिखने का दिल करता है. Class 7 से मैंने roughly लिखना शुरू किया था, and by the time of O levels मुझे पता चला कि this is my strength. I want to pursue something in writing, and फिर poems, prose, poetry सब कुछ होता गया. फिर SSC में काफी poems लिखी, bachelor's में काफी poems लिखी. I wrote 2 articles for the Green Kaleidoscope as well, और मेरे articles social development review में अभी आ चुके हैं. And by the end of my bachelor's I realized कि I've compiled a lot of poems and I wanted them to get published. Then I got my book published in the year 2007, and now that I'm in mass communication, it's like एक जरिया है लिखने का, लोगों तक पहुंचने का, और बस उस वजह से मुझे अब करियर परस्यू करना है in writing. इंशाल्लाह ज़रीन, we will see a lot of your writing. आपको आपकी जो लिखी हुई बातें हैं बड़ी जबरदस्त होती हैं. इनके आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे. ज़रीन, ये बताइएगा, पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट इस वक्त आप कर रही हैं. आपके लिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कितनी मायूसी है? पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के नौजवानों में, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में क्या मायूसी भरी हुई है, या अभी भी कोई लाइट है जो, या कोई शमा है जो हमारे यूथ को नजर आ रही है? I think on the youth part there's a lot of hope. We want to do something, we want to make a change, but I guess we don't get a chance. शायद सिस्टम एक में, हम इस ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसकी वजह से हमें काफी ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट